Hello everyone, welcome back to the Margdarshak, your ultimate guide for cracking your defense examination. This is the episode 5 of our powerful previous year paper series, and today we are going in the last episode of CAPF 2024 paper. If you missed the earlier episodes, make sure you check them out. Every session is designed to sharpen your strategy, improve your accuracy, and one question at a time. Okay, so let's begin today's session with a set of carefully selected the last lap of our series of CAPF 2024 paper. And this is going to be one of the most important session of this series. Okay, so let's begin with the question number. We have done 95 questions of this series, and we will going to 96th question. Okay, so this is the 96th question of this series, and this is the question is related to the finance commission, one of the most asked question into CAPF 2024 paper, that is about the finance commission. The 15th finance commission जो कि latest है, 15th finance commission used fiscal efforts as a criteria for horizontal devolution, unlike the 14th finance commission. Second says both the 14th and 15th finance commissions used pre-2011 demographic variables as a criteria for horizontal devolution. Used pre-2011 demographic variables? No. The 15th finance commission used 2011 only, है ना? So ये second वाला wrong हो गया. In the first, if you see it carefully, the 15th finance commission used fiscal efforts as a criteria for horizontal devolution, unlike the 14th finance commission. So इसमें अगर आप NFS4 है ना, and then after 5, okay, 2, कहाँ पे इंप्रूवमेंट कहाँ पे नहीं दिखा? यहाँ पे फर्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नहीं इसमें इंप्रूवमेंट दिखा है ना, इसमें दिखा है, इसमें यस होगा, दिखा है. थर्ड इज एनीमिया इन चिल्ड्रन, यस इसमें भी दिखा है, बहुत माइनर है बट दिखा है ना. द डी ऑप्शन इज मोस्ट फर्टिलिटी रेट, सॉरी टोटल फर्टिलिटी रेट, यस ये इंप्रूव हुआ है ना, तो ये वाला भी सही हो गया. ओबेसिटी इन द विमेन, सो ये वाला है, इसमें विमेन्स के मतलब कि ये इसका स्कोर डिग्रेड हुआ है, मतलब कि ओबेसिटी इन विमेन बढ़ी है ना. तो ओवरऑल द हेल्थ डिग्रेड हुई है विमेन्स में इन द विलेजेस. इसको कॉमन सेंस से भी लगाओ कि जैसे जैसे ये ग्रोथ बढ़ रही है, एवरीथिंग इज डेवलपिंग, विमेन्स आर गेटिंग लाइक ना मोर कंफर्ट, लाइक नॉट विमेन्स, एवरीवन इज गेटिंग मोर कंफर्ट है ना. एंड बिकॉज ऑफ दैट ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग इन विलेज. मोस्टली वी हैव सीन इन विलेज दैट पीपल आर engage themselves in manual works, but nowadays we can say that with the development manual works are taken by the machines, and because of that obesity in the men and women are both increasing. So this is a bad sign for our health. Okay, so the 98th question says tax burden of the taxes on the commodity is independent of who buyer or seller is explicitly imposed upon. Second is burden of the tax on commodity depend on the slope of demand and supply curve. Okay, so let's see the options. Okay, option says 1. Okay, so here you can say the first says burden of the tax on the commodity is independent of who is explicitly imposed upon, यानी किस पे हो रहा है ये, है ना, इंसिडेंस ऑफ द टैक्सेस से रिलेटेड वाला है ये वाला. अगर आप पढ़ोगे जनरली आपको सही लग जाएगा, है ना, जनरली भी लग जाएगा और फैक्ट वाइज तो है ही सही. द सेकंड इज द बर्डन ऑफ द टैक्स ऑन कमोडिटी डिपेंड ऑन द स्लोप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व. यस, बर्डन ऑफ द टैक्स कहाँ पे हो रहा है? अगर टैक्स बढ़ा दियोगे अगर सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व में देखोगे आप, तो इसमें देखोगे कि हाँ ये डिपेंड करता है इस चीज पे. तो यू कैन गो डायरेक्टली विद द ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. ओके, so let's move towards the 99th question of this session. In recent years, which among the following is a source of demand for Indian economy in descending order? Demand Indian economy में descending orders में कौन सी है? So इसके लिए हम देखें तो फिर पहला हो गया प्राइवेट कंजप्शंस. क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ डिमांड इन द इंडियन इकोनॉमी? सोर्स ऑफ डिमांड कहाँ से बढ़ रही है, मतलब कहाँ से कौन सा डिमांड का सोर्स है? इनको सबसे पहले सबसे ज्यादा को फिर सबसे कम को, है ना. पहला आप अगर ए को देखें तो प्राइवेट कंजप्शन,
then second is the government consumption, net exports, gross fixed capital formation. Okay, so yes we can say कि प्राइवेट कंजप्शन हमेशा डिमांड के लिए मतलब कि जब कंजप्शन ही है जो डिमांड को बढ़ाएगा, तो वी कैन डायरेक्टली से कि हाँ ना प्राइवेट कंजप्शन तो ऊपर ही आएगा, टॉप पे ही आएगा, है ना. सेकेंड इज अबाउट द सेकेंड, सो ये वाले गलत हो गए दो, है ना. सेकेंड वी कैन से द गवर्नमेंट कंजप्शन, है ना. गवर्नमेंट कंजप्शन से ज्यादा अगर आप इस वाले में देखो तो ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जितना कैपिटल फॉर्म होगा उतनी कंट्रीज में मतलब कि वो उसमें बढ़ेगा, वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उससे ज्यादा पैसा आएगा लोगों के पास, उससे उनकी वो डिमांड बढ़ेगी, फिर वो डिमांड वाला कब बढ़ेगा. ओके, सो यहाँ पे भी आप देखोगे तो हो जाएगा क्लियर, है ना. फिर हो गया ये कंजप्शन, गवर्नमेंट कंजप्शन हो गया, फिर नेट एक्सपोर्ट, ये वाला लास्ट में हो जाएगा. सो ऑप्शन सी, इफ यू अप्लाई योर कॉमन सेंस एंड जस्ट a good part of reasoning, then yes, definitely you will end up in correcting this question. Okay, so let's move towards the 100th question. What is the percentage weightage assigned to forest and ecology in the devolution formula given by the 15th Finance Commission of India for sharing of union tax revenue with the state? कौन सा है असाइन टू फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, है ना. फॉरेस्ट और इकोलॉजी के लिए कितना पार्ट असाइन किया हुआ है. सो कॉमन सेंस लगाओ कि yes we provide very less percentage to the forest and ecology. so yes इतना तो हो सकता है कि अगर 15% इसको दे देंगे तो फिर आगे वाले क्या करेंगे, है ना. आगे भी बहुत सारे सेक्टर्स है, तो ये वाला गलत हो गया. इसको भी देखो कि 10% भी नहीं दे सकते किसी चीज को, है ना. इसको भी देखो कि 7.5 फिर नहीं दे सकते क्योंकि हमें लेस लीज ढूंढा है, क्योंकि एक जस्ट एज फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एक बहुत ही मतलब कि एक मतलब कि यस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट, बट यस वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, बट नोट उतना भी नहीं है कि इतना पार्ट उसको दे दो, 15% दे दो, 10% दे दो, 7.5% दे दो ना. दिस ओनली गेट 2.5%. ओके, सो नेक्स्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द 101st क्वेश्चन. ओके, सो दिस क्वेश्चन सेज, let me just use the pen. Okay, what were the main reform undertaken under the new economic policy of early 1990s, है ना. तो उनमें 1990s की कौन सी मतलब की जो हुई थी ना ये लिबरलाइजेशन वाली पॉलिसी, इनमें क्या हुआ था, है ना. सो इसमें अगर देखोगे आप, अगर इसमें देखो कि कौन सा सही है, दो सही है, देर आर ओनली टू राइट और वन राइट, देर इज नो ऑप्शन ऑफ 3. सो डेफिनेटली देर इज मिनिमम देर इज टू ऑप्शंस आर गोइंग टू बी रॉन्ग, है ना. सो यू हैव टू एलिमिनेट दीज टू, है ना. सो फर्स्टली इफ यू सी, ओके, सो आई थिंक वी मिस समथिंग, लेट मी जस्ट, आई थिंक वी मिस समथिंग, है ना. ओके, सो फर्स्ट वी विल डू, देन वी विल डू द अदर पार्ट. ओके, नॉट एन बिग डील. Okay, so first is let's eliminate. First is poverty elimination, नहीं था ये, तो LPG से रिलेटेड था. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, है ना. फिर है ना ये वाला देखो ट्रेड लिबरलाइजेशन, यस लिबरलाइजेशन हुआ था, ट्रेड लिबरलाइज किया था. इसमें IMF की शर्त ही यही थी, कंडीशन ही यही थी कि यू हैव टू लिबरलाइज योर इकोनॉमी. द सेकंड इज पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट. यस डेफिनेटली डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज किया था, है ना. यू नो द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन डूइंग बिजनेस, है ना. सो उस कॉन्सेप्ट को यहीं पे अप्लाई किया था ना. तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, ये इतना तो हम श्योर है इसमें. तो वी कैन डायरेक्टली से फर्स्ट एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, नो देयर इज नो मतलब कि इतना भी नहीं था कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हुई थी. यहाँ पे यू हैव टू रिमेंबर द LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. यहाँ पे अगर ग्लोबलाइजेशन होता यस वी कैन गो विद द ग्लोबलाइजेशन, बट यहाँ पे नहीं है, तो हम जाएंगे 1 and 2 ओनली. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, okay, so let's move towards the next question number 107. okay, 107 says, which of the following statement, consider the following statement. National Monetization Pipeline estimates that for the period 2020 to 2025, the top 3 sectors in the terms of monetization potential are road, railway, oil and gas pipeline. Okay, under the National Monetization Pipeline, the instruments to be used for asset mobilization include public-private partnership, okay, consensus and infrastructure investment ये trust. yes, अगर ना ढंग से इसको पढ़ा जाए, वापस पढ़ के देख लो एक बार, है ना, क्योंकि काफी टाइम होता है ना कि वी डिडंट अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट रो,
first time, so we have to read it again and again until or unless we get to know the real meaning of that sentence. Okay, so National Monetization Pipeline estimates that for the period of 2020 to 25, the top three sectors in terms of monetization potential are road, railway, oil and gas pipeline. Yes, definitely pipeline से estimate है, तो yes we can say definitely it's going to be true, है ना. Second is under the National Monetization Pipeline, the instruments to be used for asset mobilization include public private partnership, consensus and infrastructure investment. Yes, definitely public private partnership, ये invites वाला concept है, definitely it's going to be true. Option C will be the correct option for question number 7, question number 107. Okay, so let's move towards the 108 question that says retail core inflation to be calculated excluding which of the following. इसमें से किसको रिटेल कोर इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं ना. कोर इन्फ्लेशन इसमें होता है ना कि कोर इन्फ्लेशन होता है, इसमें वोलेटाइल होती है जो चीजें उनको नहीं जोड़ा जाता है ना. सो फर्स्ट वोलेटाइल थिंग इज द फूड एंड बेवरेज, दिस इज द वोलेटाइल कॉन्सेप्ट, सो वी कांट एड वोलेटाइल है ना. फर्स्ट इज फूड एंड बेवरेज हो गया, सेकंड इज फुल फ्यूल एंड लाइट, दिस इज ऑल्सो वोलेटाइल सेक्टर्स, नो, है ना. सो इसमें मतलब कि इंक्लूड किसको किया जाता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो गया, क्लोथिंग एंड एजुकेशन हो गया. सो यहाँ पे क्या पूछा है ना, एक्सक्लूड किसको करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो गया 1 and 2. ओके, उनको इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये वोलेटाइल नहीं है, ये एक मतलब कि एक ट्रस्ट वर्दी सोर्सेज है ना. सो इनको वोलेटाइल की कैटेगरी में नहीं डाल सकते. So next is 109. Which of the following is a part of the capital receipt of Government of India? Capital receipt, there are two receipts, capital receipt or capital, or the other one is, and the second is the revenue receipt. So basically capital means something is we are like na creating that, मतलब कि capital receipt, capital का basic concept ये होता है कि या तो अगर receipt है तो वो हमें कुछ ना कुछ दे रहा है, जैसे कि मतलब कि हमारा कोई इन्वेस्टमेंट थी उससे हमारे पास कोई ना वो उसका कुछ पार्ट्स आ रहा है, कुछ मतलब वहां से रेवेन्यू आ रहा है ना, वो कैपिटल में होगा. फिर अगर है ना हम कुछ डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे को, तो हम क्या कर रहे हैं कि अपनी जो कैपिटल थी उसको बेच रहे हैं, तो उसका डिसइन्वेस्टमेंट होने के बाद वो हमारे पास ही आएगा ना. हमारा जो वो कैपिटल एसेट था वो कम हो रहा है, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज कैपिटल रिसीट इज इंक्लूड्स द रिसीट्स वेयर it is related to the liabilities and asset of the government. Capital receipt says that there is like increase in the reduce in the liabilities or increase in the asset of the government, and capital expenditure says there is an increase in the liabilities of the government and reduce in the asset of the increase in the. Okay, so let's move towards the question. It's very confusing for now, we will discuss it later. Okay, so capital basically that will give you ना, या तो वो आपको पैसे दे रहा है या आपसे ले रहा है, मतलब कि एक या तो आपके लिए एसेट का काम कर रहा है या लाइबिलिटी का काम कर रहा है. तो इन दिस कॉन्सेप्ट यू हैव टू गो विद दैट. फर्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, यस डेफिनेटली पीएसयूज के डिसइन्वेस्टमेंट होगा. इंटरेस्ट, यस डेफिनेटली इंटरेस्ट वाला पार्ट भी. ओके, इंटरेस्ट इज आई थिंक इंटरेस्ट इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू receipt. Okay, let's move towards the second is small saving. Yes, definitely ये liabilities है, definitely होगा. and the third is net market borrowing. net marketing borrowing ये गवर्नमेंट के लिए या तो एसेट और लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, यस कर रहा है ना. ये इंटरेस्ट रिसीट है, ये ना कोई कहना वो लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है ना कोई एसेट क्रिएट कर रहा है, ये जस्ट रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए, तो ये वाला नहीं होगा. सेकंड नहीं होगा, तो ये वाले नहीं होंगे क्वेश्चंस, है ना, ये वाले नहीं होंगे. फोर्थ इज नेट बोरोइंग है तो वो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है ना, तो वो वाला भी हो गया क्योंकि गवर्नमेंट को लोन चुकाना पड़ेगा उस पे, है ना. लोन चुकाओगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिससे आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी. तो ये फोर्थ तो सही होगा. फोर्थ होगा तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड वैसे भी रॉन्ग है, थर्ड वैसे भी रॉन्ग है, फोर्थ विल बी करेक्ट ऑप्शन. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द आवर फर्स्ट और 101st क्वेश्चन. ओके, सो this says consider the following statement regarding the instruments of monetary policy. monetary policy के instruments से regarding क्वेश्चन है. so this question says that the central bank can increase the money supply by increase the bank rate, है ना. ओके, मनी सप्लाई बढ़ा सकता है बैंक रेट को क्या करके, बैंक रेट को इंक्रीज करके, है ना.
सो यहाँ पे देखोगे बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट वो होता है जब मतलब जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को लोन देती है ना। अब कॉमन सेंस लगाओ कि अगर बैंक रेट इंक्रीज वाइफ द बैंक रेट विल गोइंग टू इंक्रीज, है ना। सो बैंकों को पैसा मतलब ज्यादा महंगे दाम पे मिलेगा, है ना। तो उससे क्या होगा, है ना, बैंक्स कम लेंगे वहां से लोन, सेंट्रल बैंक से कम लेंगे तो बैंक के पास कम पैसा होगा, जिससे बैंक के पास कम होगा तो लोगों के पास कम जाएगा, तो इससे इनके मतलब क्या होगा, है ना, यहाँ पे मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी इकोनॉमी में, है ना। सो फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट रॉन्ग हुआ तो कौन सा काट सकते हैं, फोर्थ काट सकते हैं, थर्ड काट सकते हैं। वहां पे हमें देखना है कि सेकंड तो सही होगा ही होगा, है ना, सेकंड तो सही है। ये थर्ड में देखते हैं कि थर्ड सही है कि नहीं है ना। थर्ड सेज सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज मनी सप्लाई बाय इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो इज लाइक ना रिलेटेड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बैंक, लाइक ए बैंक हैव टू रिजर्व सर्टेन रुपीज इन कैश रिजर्व्स इन लाइक ना कैश को रिजर्व में रखना पड़ता है ना। सो उसके लिए अगर वो बढ़ा देंगे तो बैंक्स को कैश ज्यादा रखना पड़ेगा, कैश ज्यादा रखेंगे तो वो आगे लोन कम दे पाएंगे, तो फिर अल्टीमेटली मतलब कि इकोनॉमी में पैसा कम जाएगा तो उससे क्या होगा, डिक्रीज इन मनी सप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस होता तो आप कर पाते। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द 102nd क्वेश्चन। दिस सेज which of the following statement regarding to the national logistic policy is not correct। national logistic policy से रिलेटेड कौन सा कॉन्सेप्ट करेक्ट नहीं है ना। सो इसमें देखो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी वाज लॉन्च इन 2022, यस कह सकते हैं होगा, है ना, अभी कंफर्म नहीं है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी वुड इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स, या डेफिनेटली ये तो जनरलाइज स्टेटमेंट है, हाँ कुछ किया है तो वो कुछ अच्छा ही करेगा। ओके, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी वुड इनहेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली ये मतलब कि जनरल स्टेटमेंट है, इसको तो देखते ही पॉजिटिव स्टेटमेंट लग ही जाना चाहिए। वुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर डी लेवरेजिंग बैलेंस शीट एंड प्रोवाइड फिजिकल स्पेस फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, है ना। इसमें देखोगे तो ये डायरेक्टली इसमें क्या दे रखा है ना, वुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर डी लेवरेजिंग बैलेंस शीट एंड प्रोवाइड, नहीं ये डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं करता, क्रिएट ये है ना, मतलब कि ये फाइनेंस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है ना कि लॉजिस्टिक पॉलिसी से रिलेटेड है। लॉजिस्टिक का फाइनेंस से क्या मतलब है ना। सो ये वाला गलत हो जाएगा, है ना। इसमें आपको क्या करना है, इनकरेक्ट ढूंढना था, हमें इस पे डाउट था, ये डाउट में छोड़ देते हैं कि पता नहीं, हाँ हुआ तो इस टाइम पे था, अभी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है बट कब हुआ था ये पता नहीं हमें। सो यहाँ पे हम डाउट में छोड़ देंगे, इसको देखेंगे तो यहाँ पे अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये डेफिनेटली इट विल बी गोइंग टू रॉन्ग, क्योंकि ये फाइनेंस वाला कॉन्सेप्ट है ना। फाइनेंस का लॉजिस्टिक पॉलिसी से क्या मतलब है, लॉजिस्टिक इज अबाउट improving the trade and transportation and everything, doesn't matter about the fiscal concepts, है ना, the finance concept। Just 103rd question says consider the following statement regarding the public goods and externalities। okay, कौन सा पब्लिक गुड्स के और एक्सटर्नलिटीज के रिलेटेड है, नॉन राइवलरी। ओके, दिस इज नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडिएबिलिटी आर टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक गुड्स। नॉन राइवल को क्या करना है, इनकरेक्ट ढूंढना था, हमें इस पे डाउट था, ये डाउट में छोड़ देते हैं कि पता नहीं, हाँ हुआ तो इस टाइम पे था, अभी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है बट कब हुआ था ये पता नहीं हमें। सो यहाँ पे हम डाउट में छोड़ देंगे, इसको देखेंगे तो यहाँ पे अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये डेफिनेटली इट विल बी गोइंग टू रॉन्ग, क्योंकि ये फाइनेंस वाला कॉन्सेप्ट है ना। फाइनेंस का लॉजिस्टिक पॉलिसी से क्या मतलब है, लॉजिस्टिक इज अबाउट इंप्रूविंग द ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग, doesn't matter about the fiscal concepts, है ना, the finance concept। Just 103rd question says consider the following statement regarding the public goods and externalities। okay, कौन सा पब्लिक गुड्स के और एक्सटर्नलिटीज के रिलेटेड है, नॉन राइवलरी। ओके, दिस इज नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडिएबिलिटी आर टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक गुड्स। नॉन राइवल हो गया, नॉन एक्सक्लूडिएबिलिटी आर टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पब्लिक गुड्स कह सकते हैं, है ना। सेकंड इज मार्केट कैन प्रोवाइड द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ ए गुड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटीज। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट कैन प्रोवाइड ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ गुड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नली, कोई भी एक्सटर्नलिटीज होगी ना, उसके टाइम पे मार्केट अपने आप इस चीज को हैंडल करेगा। नहीं, हमने देखा है, वी हैव सीन कि गवर्नमेंट हैव टू इंटरवेन इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। सो ऑप्शन बी विल बी द इनकरेक्ट ऑप्शन, है ना। फर्स्ट देखो, नॉन राइवलरी
नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी इन द पब्लिक गुड। पब्लिक गुड होता है जो फॉर ना गुड फॉर द ना बेनिफिट ऑफ द पीपल होता है, जैसे रोड्स हो गया एंड एवरीथिंग, है ना। यहाँ पे क्या होता है, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी यानी कि एक्सक्लूड नहीं कर सकते किसी को भी। नॉन राइवलरी यानी कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं है लोगों में, है ना, सबको मिलेगा। देयर आर इफ देयर इज एन रोड देन एवरीवन कैन यूज, नो देयर इज नो राइवलरी इन दैट। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Second question says, 104th question says, population of 2011 was first introduced in the tax devolution formula for sharing the union tax revenue with the state. ये वाला अभी हमने देखा था, और कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे तो आप देख पाओगे ये वाला हमने यूज किया था वहां पे, ये हमने डिस्कस किया था, 14 फाइनेंस कमीशन डिस्कस किया था ना, उसमें डिस्कस किया था हमने ये कि पॉपुलेशन ऑफ 2011 वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द टैक्स डिवोल्यूशन फॉर्मूला बाय से फॉर शेयरिंग. ओके, सो हमने देखा मतलब कि फाइनेंस कमीशन आर मोस्टली फॉर 5 years, सो यू कैन से कि उनके बाद में कौन सा मतलब कि फाइनेंस कमीशन आया, तो वी कैन से द 14th. सो विद द कॉमन सेंस एंड विथ our presence of mind we can tackle this question, that is 14th finance commission हो गया. 105th question says, which of the following statement is not correct for प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. ओके, मुद्रा योजना इट्स स्मॉल लोन्स प्रोवाइडेड टू पीपल, मतलब कि नॉन कोलेट्रल लैंग्वेज, मतलब कि इनमें होता है ना कि आपको कोलेट्रल नहीं रखना पड़ता, कुछ ऐसा होता है ना, उसको पढ़ते हैं. नोट करेक्ट है, ये वाला है डाउट में छोड़ देते, इसको डाउट में रख दो, है ना. सेकंड इज ग्रांट लोन्स ऑफ अप टू 15 lakh फॉर इनकम जनरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर. ओके, under this scheme only the term loan requirement can be met, not the working capital requirement met. Okay, there is no insistence on collateral for sanction of the loan. yes, ये वाला तो सही है, हमने तो ये तो देख लिया. इसमें ये वाला पढ़ो, ओनली आ गया थोड़ा सा उसमें, अगर आप देखोगे थोड़ा सा उसमें आ गया ना, ये थोड़ा सा वो अजीब वाले में आ गया. ओनली क्यों लिखा, खटका दिमाग में कि ओनली क्यों लिखा इन्होंने, है ना. सो पढ़ो इसको वापस, रीड इट अगेन. यूज दिस स्कीम ओनली the term loans requirement can be met, not the working capital requirement. क्यों भाई, क्यों नहीं मीट हो सकती है? इसमें तो हम मतलब कि ये लोन बोथ के लिए होता है, वर्किंग कैपिटल के लिए भी होता है और इसके लिए भी होता है. तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर लाइक, है ना, नॉट करेक्ट, है ना, ये नॉट करेक्ट है. ओके, सो वी कैन गो विद द ऑप्शन सी. हमें ये नहीं पता था, हमने इसको छोड़ा, हमें ये हो सकता है ग्रांट अप टू 15 लाख. हाँ, करता होगा, किसी को पता है. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, है ना. सो ये इस हिसाब से आप कर सकते हो, क्योंकि इस हिसाब से इजी रहेगा, वरना तो फिर ना यू कैंट रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग फॉर योर एग्जामिनेशन. ओके, नेक्स्ट इज 110. अरेंज द फॉलोइंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन असेंडिंग मैनर इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टोटल रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2023 एंड 24, है ना. तो यहाँ पे जो पहले था ना, पहले कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब कि शेयर सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट था, है ना. कौन से में टोटल रेवेन्यू क्या अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि कम से ज्यादा की तरफ जाना है ना. तो सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स था, फिर इसमें मतलब कि गवर्नमेंट ने जो एक चेंज किया, जिसमें कि अगर आप ना आप उसके मतलब कि आपको किसी कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, अगर आप कंपनी का किसी शेयर का पैसा मिल रहा है, तो पहले कंपनी चुकाती थी उसका मतलब कि वो टैक्स, बट नाउ जब जिसको मिल रहा है वो चुकाएगा, है ना. तो इसमें से कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब कि परसेंटेज शेयर कम हो गया, तो जहां पे अभी आपको कॉर्पोरेट टैक्स दिख रहा है लास्ट में, है ना, उसको हटा दो. ये वाला आप अगर बजट पढ़ोगे तो बजट वाले में आपको मिल जाएगा, ये देखने को मिल जाएगा कि हाँ कॉर्पोरेट सेकंड नंबर पे आ गया है, फर्स्ट नंबर पे हमारा जीएसटी चला गया, है ना. तो फर्स्ट नंबर इज जीएसटी, सेकंड इज कॉर्पोरेट टैक्स. ओके, फर्स्ट जीएसटी, सेकंड इज कॉर्पोरेट टैक्स, थर्ड विल बी द थर्ड कौन सा होगा बताओ, है ना. सो द थर्ड इज गोइंग टू विल बी द यूनियन एक्सरसाइज. ओके, थर्ड विल बी द यूनियन एक्सरसाइज, एंड उससे पहले हो गया कस्टम जीएसटी, है ना. कस्टम वाला पार्ट नहीं, ये वाला गलत हो गया, इसमें ये वाला तो गलत था ही पहले से हो गए. हाँ, ये वाले देखने थे हमें दो, है ना. इसमें एक्सरसाइज पहला होगा जीएसटी, फिर कॉर्पोरेट, फिर एक्सरसाइज, फिर कस्टम्स. ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द आउटकम्स ऑफ द टॉक्स between the Prime Minister of India and the President of the UAE held in the February 2024 is or are correct? Both countries sign an agreement on interlinking of domestic credit cards. Yes, we have seen कि हाँ उनमें कुछ ना कुछ तो हुआ था पेमेंट से रिलेटेड, यानी कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ तो हुआ था. हाँ, तो इसको मान सकते हैं कि हाँ ये हुआ था. सेकेंड इज MOU was signed on the cooperation in digital infrastructure project.
हाँ, अगर मतलब कि हुआ होगा तो एक MOU भी साइन हुआ होगा, है ना। सो ये वाला भी करेक्ट होगा, है ना। बोथ कंट्रीज agreed that bilateral investment treaty shall be signed in the next meeting or at the ministerial level. ओके, हुआ होगा। सो दोनों ने डिसाइड किया होगा, है ना, क्योंकि उनके रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं। और अभी सेम क्वेश्चन, मतलब सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन अब की बार वहां पे आया था CSC में, जो IAS वाला एग्जाम होता है उसमें था कि मतलब कि देर कहते कौन कौन सी कंट्रीज है जो इंडिया के साथ, मतलब कि इंडिया के UPI और इंडिया के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब कि सपोर्ट करते हैं, यानी कि जो फॉर मतलब कि कहाँ कहाँ पे मतलब कि इंडिया का ये पेमेंट सिस्टम वो काम करता है। तो उसमें भी UAE का ऑप्शन था, फ्रांस का भी था, क्योंकि आपने देखा हो अप्रैल टावर के आसपास वाला हुआ था कुछ, है ना, जब इसका एडवर्टाइजमेंट हुआ था, है ना। सो इस प्रकार से मतलब कि रिपीट होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट विल बी रिपीटेड इन योर एग्जाम अगेन एंड अगेन एवरी टाइम, है ना। सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पिलर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का कौन सा पिलर नहीं है ना। द फोर्थ है ना, इनलार्जिंग मोस्ट फेवर्ड नेशन। ये मोस्ट फेवर्ड नेशन WTO का कॉन्सेप्ट है कुछ, है ना, ट्रेड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये वाला, है ना। तो इसमें आप देखोगे तो इंडिया की, हाँ, इनलार्जिंग ये वाला तो नहीं है, मतलब कि ये वाला तो फॉरेन पॉलिसी का ऑब्वियसली नहीं होगा, है ना। उसके बाद में अगर देखोगे आप मतलब कि ये इंडिया का पार्ट नहीं, इसका मतलब कि फॉरेन पॉलिसी का पार्ट नहीं था। सेकंड इज एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलिब्रेशन। डेफिनेटली ये वाला हो सकता है, मतलब कि ये जनरल स्टेटमेंट है, वी कैन गो विद दैट। द थर्ड इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यस डेफिनेटली। एंड द फोर्थ इज इमर्जिंग एरिया स्ट्रीमलाइनिंग HCO मेट, ओके, पॉलिसी, यस डेफिनेटली, ये पॉलिसी से रिलेटेड था, तो ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर, आंसर विल बी द ए, option A will be the answer of this question. Okay, so next move towards the 1-1, मतलब कि 113 third, है ना। Which of the following three statements about the vibrant village program of the government of India is correct? vibrant village programs के रिलेटेड कौन सा, ये बॉर्डर एरियाज के लिए डेवलपमेंट और वहां पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, मतलब कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। तो इसको पढ़ लेते हैं, क्या है। इट एम एट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द आइडेंटिफाइड विलेज, है ना। ओके, सो आइडेंटिफाइड विलेज यानी कि ये मतलब कि जो होता है ना बॉर्डर एरियाज पे जो विलेज होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, ताकि वहां के पीपल्स में कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके ना। द सेकंड इज फेयर फेस्टिवल स्पोर्ट मीट्स आर ऑर्गेनाइज अंडर दिस प्रोग्राम, इज डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए गवर्नमेंट कर रही है ये वाला काम। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 114 क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज 43rd आसियान समिट। इसमें आप देखोगे तो इंडोनेशिया था, इंडोनेशिया जिसने मतलब कि ये वाला समिट चेयर किया था, है ना। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, है ना। Okay, which one of the following Indian PSUs has been declared as winner at the Braden Hall Group's Excellence in the Technology Award 2023? Okay, so ये वाला मिला था NTPC को, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था NTPC इस बार, तो अगर आप थोड़ा भी बहुत भी अगर सोचते तो कर सकते थे इसको, है ना। ये वाला which of the following two organizations are the part of TIWD, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। टैक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो कुछ ना कुछ तो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट होगा, है ना। अब इसको उस हिसाब से देखो, है ना। पहला वाला क्या हुआ, आसियान, है ना, कॉमन सेंस लगाओ, है ना। आसियान का UNDP के साथ ये वाला कोलेबोरेशन टैक्स से रिलेटेड नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा, कभी भी हुआ होगा और कभी भी हो पाएगा। आसियान इज लाइक ना नॉट दैट बिग अलायंस, है ना, तो उसमें से नहीं, मतलब कि एक बहुत ज़्यादा बिग ना फॉर्मेशन नहीं है आसियान, तो ये आसियान वाले तो सारे मेरे हिसाब से गलत होंगे, है ना। और ILO से मतलब ही नहीं है ना, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यानी टैक्स से रिलेटेड है ना, मतलब कि इकोनॉमिक से रिलेटेड है ना। सो यहाँ पे देखोगे तो इकोनॉमिक से रिलेटेड वाला पार्ट क्या है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ओके, सो इसमें तो आसियान आ गया, ये तो वैसे गलत हो गया, ये वैसे गलत हो गया, इसमें भी आसियान आ गया। तो कॉमन सेंस से जाओगे तो भी UNDP यानी कि डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये भी है ना इकोनॉमिक से रिलेटेड है। फिर ये वाला इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, ये भी इकोनॉमिक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली गए ना, मतलब अगर थोड़ा बहुत भी सोचेंगे तो ये वाला डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला यस डेफिनेटली फैक्चुअल है, अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा, क्लियर है ना। तो 117 क्वेश्चन सेज, ओके, आई थिंक, ओके, लेट मी जस्ट जूम फॉर यू, okay, wait, let me, okay, which of the following countries does not set boundaries with the Ukraine? यूक्रेन पहले भी न्यूज़ में था, अब की बार भी न्यूज़ में है। यू हैव टू रिमेंबर द लोकेशन ऑफ द यूक्रेन, रसिया, कौन से सीज के साथ इनका बाउंड्रीज है, कौन सी कंट्रीज के साथ इनकी बाउंड्रीज है, ये वाला सारे याद करने। यू हैव टू रिमेंबर सम लाइक ना प्रोविंसेस ऑफ यूक्रेन एंड रसिया बिकॉज दे आर इन न्यूज़ एंड मे बी द UPSC विल गो आस्क यू अबाउट देयर लोकेशंस दैट। ये वाला का पार्ट किस मतलब कि जैसे कि आ गया
कोई भी पार्ट आ गया, कोई भी प्रोविंस का नाम दे दिया कि ये किसका पार्ट है ना, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यस डेफिनेटली रोमानिया भी इसका नेबर है, शेयर बाउंड्री शेयर करता है, मोल्डेवा भी करता है, पोलैंड भी करता है, पोलैंड काफ़ी रेस्क्यू वगैरह हुए थे ना यहाँ से। लिथुनिया तो हमारा बाल्टिक नेशंस के पार्ट वाला है, फिनलैंड नॉर्वे वाले एरिया में है। अगर आप देखोगे तो बाल्टिक सी के जो पास वाला एरिया है उसमें है। तो हाँ लिथुनिया आई थिंक रसिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बट इस यूक्रेन वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, ये वाला यहाँ पे हो गया, नहीं इसके साथ तो कहीं से भी नहीं करता है ना। सो डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो हाँ ये लिथुनेशिया नहीं करता है ना। ओके, और सेम क्वेश्चन इस बार 2025 का जो फर्स्ट वाला हुआ था सीडीएस का, उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, ऑलमोस्ट सेम, है ना। यहाँ पे हमने अगर पहले भी ये क्वेश्चन देखा था जिसमें कि हमने मतलब कि कुछ ये डिजिटल हमारा पेमेंट सिस्टम्स के बारे में देखा था, है ना। तो यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत और देखें तो J1 इज द डोमेस्टिक डेबिट कार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, हमने देखा था क्योंकि है ना हमने अभी है ना इंडिया और यूएई का कुछ हुआ था, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को लिंक किया था ना, मतलब कि दोनों कंट्रीज ने, तो उसी से रिलेटेड वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर कॉमन सेंस लगवाया है तो आप इसको डेफिनेटली कर सकते थे ना। एंड दैट 119 क्वेश्चन सेज हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द इंटरनेशनल एमी अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर्स, तो ये वाला हो गया मार्टिन फ्रीमैन, ये वाला करेक्ट हो गया। हाँ ये वाले भी, ये भी हुए थे, नॉमिनेट हुए थे, बट इनको इस फील्ड में नहीं मिला, है ना। सो ये मिला है सिर्फ मार्टिन फ्रीमैन को। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द 110 क्वेश्चन, 120th क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कौन सा कार्बन बॉर्डर में एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से रिलेटेड है। दीज आर द इमर्जिंग सेट ऑफ ट्रेड पॉलिसी। ओके, क्या है, इमर्जिंग सेट ऑफ ट्रेड पॉलिसी टूल्स टू अलाउ मूवमेंट ऑफ कार्बन इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्रॉम द jurisdiction having less stringent climate policy to a jurisdiction having stringent climate policy, है ना। Second says these are mean to increase the environment effectiveness of the climate policies. Okay, हाँ डेफिनेटली ये वाला तो करेक्ट हो जाएगा ना, मीन टू इंक्रीज द इन्वायरमेंट इफेक्टिवनेस टू ऑफ क्लाइमेट पॉलिसी। ओके, डेफिनेटली क्लाइमेट पॉलिसीज का मतलब कि इन्वायरमेंट को मोर इफेक्टिव और इंक्रीजिंग बनाने के लिए ये वाला है। अगर फला वाला देखें तो दीज आर द इमर्जिंग सेट ऑफ ट्रेड पॉलिसी टूल्स टू अलाउ मूवमेंट ऑफ कार्बन इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्रॉम jurisdiction हैविंग लेस स्ट्रिंजेंट क्लाइमेट पॉलिसी jurisdiction, यस डेफिनेटली ये कुछ यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट है। यूरोपियन यूनियन ने ये CBAM लॉन्च किया था, है ना, ये काफ़ी न्यूज़ में था, अब की बार भी आ सकता है ये इसमें CAPF में भी आ सकता है, CDS में भी आ सकता है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, है ना। सो 121 क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट द नोबेल पीस प्राइज ऑफ 2023, इज डेफिनेटली फैक्चुअल है। ये नरगिस मोहम्मदी जी को मिला था, है ना, ये इनको मिला था कि मतलब कि अफगानिस्तान वाले में नहीं मिला था इनको, सिर्फ ईरान में जो वुमेन राइट से रिलेटेड था उनके लिए मिला है, ना कि ना अफगानिस्तान में पीस के लिए, नॉट अफगानिस्तान में पीस के लिए नहीं मिला इनको, है ना। ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही हो गया, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर या कोई भी मैगजीन वगैरह फॉलो करते हो तो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस, है ना। ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था, है ना। ईरान वाला मतलब वुमेन वाला भी काफ़ी हुआ था, वुमेन प्रोटेस्ट, वुमेन एम्पावरमेंट वाला भी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विथ रिगार्ड टू द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इज नॉट करेक्ट। सो फर्स्ट ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था UAE में, है ना। ओके, सो द ए इज द ग्लोबल स्टॉक टेक इज द सेंट्रल आउटकम ऑफ COP28, हाँ हुआ होगा। द सेकेंड इज इट रिकॉग्नाइज द नीड टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग, ये हर में होता है, ये यहाँ पे रिकॉग्नाइज नीड करता है, रिकॉग्नाइज किया होगा, हमें क्या रिकॉग्नाइज यहाँ किया होगा, है ना। थर्ड इज इट डायरेक्टेड द डेवलपिंग कंट्रीज टू लीड द ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल। भाई डेवलपिंग कंट्रीज को ही क्यों, डेवलप्ड कंट्रीज को क्यों नहीं, है ना। कॉमन सेंस लगाओ, डेवलपिंग कंट्रीज, एटलीस्ट ये बोल सकते थे डेवलप्ड कंट्रीज को, तो आपकी हम भी मान सकते थे, है ना। बट डेवलपिंग कंट्रीज वाई UPSC वाई यू आर डूइंग दिस सिली थिंग्स, है ना। अगर हाँ मतलब ये है तो सबके लिए, नॉट डेवलपिंग एंड डेवलप्ड, बट यहाँ पे अगर डेवलप्ड होता तो भी हम जा सकते थे कि हाँ डेवलप्ड के लिए हो सकता है ना, बट नहीं, ये सभी के लिए हुआ था, यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज का नहीं है ना। ओके, ओके 103rd क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू अनूप बरेनवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2023 केस इज करेक्ट, इज और आर करेक्ट, है ना। ये वाला ये क्या कौन सा था, अनूप बरेनवाल से पूछ रहे अभी, ये वाला इट हर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यस हाँ ये वाला कुछ 5 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा सुना गया था ये वाला। एंड अकॉर्डिंग टू द जजमेंट द ग्राउंड्स फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर शेल बी द सेम एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यस
डेफिनेटली ये करेक्ट है ना, ये है ना कुछ इलेक्शन कमिश्नर के मतलब कि उससे रिलेटेड था, रिमूवल से, ग्राउंड ऑफ रिमूवल से, सो उसमें कहा था कि हाँ ये डेफिनेटली ये वाला सही है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम विच इज डेवलपिंग साइंस सेंटर्स. ओके, साइंस सेंटर्स, म्यूजियम्स एंड इनोवेशन हब्स इन इंडिया वर्कड अंडर, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है ना? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, है ना? क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम्स विच इज डेवलपिंग साइंस सेंटर्स म्यूजियम इनोवेशन हब. ये वाला फैक्चुअल है. इसमें अगर आप कॉमन थोड़ा बहुत भी सोचोगे तो ये एजुकेशन से आएगा. यस, डेफिनेटली इट इज फैक्चुअल. इफ यू डोंट नो प्लीज मतलब कि इसको फालतू में मतलब इसमें उलझना मत, डायरेक्टली चले जाना है. Okay, so which of the following cities was included as the city of music in the year 2023 in the UNESCO Creative Cities Network? कौन सी सिटी है जिसको यूनेस्को में क्रिएटिव सिटी ऑफ द म्यूजिक में इंक्लूड किया था अभी 2023 में, है ना? ये वाला ग्वालियर हो गया, जो भी ग्वालियर को 2023 में किया था. शायद चेन्नई और वाराणसी को भी इन्होंने मतलब कि म्यूजिक से रिलेटेड रिकॉग्नाइज कर रखा है. एक को शायद 2017 में, एक को 2015 में, है ना? सो यहाँ पे अगर देखोगे तो 2023 में ग्वालियर को, है ना? और ये म्यूजिक से रिलेटेड है भी, क्योंकि आपने देखा होगा ग्वालियर घराना वगैरह, है ना? आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन वाला, है ना? तो वो वाला हो गया. सो that is enough for today's session. We have done our 2024 CAPF paper complete, and I hope you learned something from this paper. I want you to just sit and go through this paper again, try to solve by yourself again, so that you can get to know that now what mistakes you are doing again, है ना? You don't have to repeat the mistake. You have to learn from your mistake, our class notes, as well as the approaches we applied, है ना? So this is how you have to approach a paper. Yes, definitely. It take us about, I think, 3 hours, but ultimately it will definitely a good initiative, and it has a good approach. So thank you for being with us. From tomorrow we will start with the new paper with the new series. Thank you for being with me. Have a good day.